Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Mother Series by Kondepudi Nirmala. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. Okay, so Kondepudi Nirmala, she was born on 26th March 1958 and she completed her education at Vijayawada. And you know, this particular poem, Mother Series, it was originally written in Telugu and it was written by Kondepudi Nirmala, and later it was translated in English by K. Damodar Rao. So what is this poem all about? So this poem, as the name suggests, Mother Series, this poem is about an ailing old mother. ये जो mother है ये बहुत old हो चुकी है. She's nearing her death. This mother is very old, she is not well, and at the end stage of her life she doesn't want to live anymore. She is telling this conversation is between the mother and the son. जो ये एलिंग मदर है वो अपनी लाइफ के बहुत एंड में पहुंच चुकी है और वो बहुत बीमार है. तो ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन है एक एलिंग मदर और एक सन के बारे में, इसी चीज़ को पोइट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स रीड द पोएम एंड सी वॉट द मदर इज़ ट्राइंग टू से. और इस पोएम का जो मेन थीम है वो है द पेन ऑफ एन एलिंग मदर. जो ये पेन जितना हो रहा है इस मदर को, उन्होंने व्हेन शी वॉज यंग वो तो अपनी लाइफ उन्होंने बहुत अच्छे से जी थी, बट नाउ शी इज़ ओल्ड एंड शी कैन नॉट विद होल्ड द पेन, द फिजिकल पेन, द मेंटल पेन, एंड दैट इज़ वाई शी डजंट वांट टू लिव एनी मोर. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. Okay, so I will give a reply to your unasked questions. Strangely to all, they all seem expecting it. So the speaker is an ailing old mother. जो ये speaker हैं, she is an old mother and she is telling to her son, I will give a reply to all your unasked questions. तो ये जो बोल रही हैं, जो वो ओल्ड मदर हैं, वो अपने सन को बोल रही हैं कि तुम जो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आई विल गिव अ रिप्लाई टू ऑल योर अनआस्क्ड क्वेश्चंस. मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस की आंसर दूंगी, वो जो तुमने मुझे पूछा है और वो जो तुमने मुझे नहीं पूछा है. I have no longer to live any longer, dear son. So the ailing mother, उनके अंदर जो desire होती है लाइफ को जीने की, she doesn't have the desire to live anymore. The desire that to live more, that is entered in her heart. उनके दिल में जो इच्छा होती है लाइफ को आगे और जीने की, इस ailing mother में वो चीज़ अब नहीं है, because she is very old, she is tired, she is not well. So by seeing all these complications and pain, she wants to die now. With hollow words of empty concern, with loveless strokes, you gave me a gulp of water. Quite unfeeling your hands are. So, with hollow words of empty concerns. तो यहाँ किसको ये बोल रही है वो ailing mother? So the people, when the ailing mother is sleeping there, there are many people who have come to see her. बहुत सारे लोग हैं जो वो एलिंग मदर को देखने आए हैं. तो वो एलिंग मदर यही कह रही है कि हॉलो वर्ड्स ऑफ एम्प्टी कंसर्न, जो वो कंसर्न दिखा के लोग उनसे बातें कर रहे हैं, उनके अगल बेड के चारों तरफ जो लोग उनके पास खड़े हैं वो उनके हॉलो वर्ड्स हैं. दे आर जेन्युइनली नॉट कंसर्न फॉर द मदर. वो वर्ड्स भी हॉलो हैं, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज एवरीबडी दे नो दैट द मदर इज़ ओल्ड. वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं एंड एनी टाइम she may die. तो वो genuinely concerned नहीं है for the old lady, and the old lady very well know the fact कि ये जो जितने लोग हैं वो बस ऐसे ही they have just come for the sake of seeing the lady. वो genuinely concerned उस lady के लिए नहीं है. My life flows rolling down my eyes. She may not go now. Shh, she may be silent. So my life flows rolling down my eyes. So here the mother is telling that I am very sad now. जो उनकी आँखों से जो वो tears roll down हो रहे हैं, वो tears they are water but mutually they are the feelings. वो जो feelings हैं उनके आँखों से वो निकल के आ रही है through in the form of tears. She may not go now. Shh, she may be silent. तो एक जो वहाँ पे जो विजिटर्स आए हुए थे देखने के लिए एलिंग मदर को, वन ऑफ देम ज़ोर से मत बोलो, शी में नॉट गो नाउ मीन्स उनमें वो बातें चल रही है कि शायद ये अभी इतनी जल्दी डेथ नहीं होगी इनकी. तो जो दूसरा जो है वो उसे चुप करा रहा है, शी में बी साइलेंट. तो वो बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, अदरवाइज़ वो सुन लेगी, वो हम जो बात कर रहे हैं कहीं वो सुन ना ले. तो ये जो विजिटर्स हैं उनके वो ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. नो नीड टू मूव
to open my eyes. My ear, like twin boats, carry the weight of your words. So, no need to move to open my eyes. So, the ailing mother, she is telling that जब वो बेटा उनकी आँखों को टच कर रहा था, देख रहा था कि वो उसकी मदर जो है वो देख सकती हैं या नहीं, तो वो मदर कह रही है नो नीड टू ओपन माई आइज़. तुम ये मत सोचो कि मेरी जो आंखें बंद है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. माई ईयर लाइक ट्विन बोट्स कैरी द वेट ऑफ योर वर्ड्स. सो शी इज़ टेलिंग दैट माई आइज़ में बी क्लोज, मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, बट माई ईयर्स आर ओपन एंड आई कैन हियर एवरीथिंग. तुमको क्या लग रहा है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हें लगता है कि मैंने आंखें बंद कर ली तो क्या मेरी डेथ हो गई है? नो, आई एम नॉट डेड नाउ. माई आइज़ आर क्लोज्ड बट आई कैन हियर एवरीथिंग फ्रॉम माई ईयर. मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है. Remember, you were a small boy and I breastfed you even in your sleep. So the mother, she is reminding her son कि जब वो सन जब छोटा सा था, the mother was very young, she was very joyful, she was very energetic and she was doing all the work. So at that time, the mother is reminding that when you were a small baby and I was very young, I used to breastfeed you in your sleep also. जब तुम नींद में भी थे तब वो उसकी एलिंग मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती थी. Now I will give my reply. I have no wish to live any longer. So the mother is telling that I want to reply now. अब मैं तुम्हें जवाब देना चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती. She is tired of everything. She has grown old. She cannot do the physical work, and the body is not working properly, and she is getting a lot of pain. ओल्ड एज में जितने डिजीज़ हो जाती है, बॉडी में वो फुर्ती नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती. एंड नाउ शी इज़ गेटिंग ओल्ड. दैट इज़ वाई शी डजंट वांट टू लिव एनी मोर. I hear thousands of many footsteps running here and there. So she is telling that I can hear that the many footsteps. फुटस्टेप्स कहाँ से आए? बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ पे एलिंग मदर को देखने के लिए. तो वो वही कह रही है कि आई कैन हियर द फुटस्टेप्स दैट पीपल आर कमिंग एंड दे आर गोइंग. सो शी इज़ mentally aware of everything. Maybe she has not opened her eyes are closed, but she can feel everything. She is very intelligent, she can feel everything, she can hear everything, and she can know कि कितने सारे लोग आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए, and people are coming to see her and they are going. In dark daylight, I open my eyes piercing through layers of darkness. So she is telling that in daylight, so she can feel that people are coming, going, and she can feel everything in the daylight also and at night also. She can feel everything, that whatever things are going there. How many figures you ask me to name? Like a dot in a question mark, I'm stepping down memory lane and you give me a brain teaser. So in the next sentence, the boy is telling that how many figures you ask me to tell name by name. Now the mother is telling that to the son that how many figures you were telling me to check. ये क्यों कर रहा है बेटा कि उसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या कोई लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, तुम क्या बोल पा रही हो. ये वो सन जो है उसके मदर का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए बोल रहा है कि कहीं उसकी मदर मतलब उनको कुछ समझ में तो आ रहा है कि नहीं, उनकी थिंकिंग जो पावर है वो कितनी है, क्या उन्हें दिख रहा है या नहीं प्रॉपरली. तो ये सब चेक करने के लिए वो सन बोल रहा है हाउ मेनी फिगर्स यू आस्क मी टू टेल नेम बाय नेम. तो वो सन ये बोल रहा है कि यहाँ पे फिगर्स मीन्स कितने पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, क्या तुम्हें दिख रहे हैं, क्या तुम्हें इनका नाम पता है. तो वो बेटा जो है उसकी मदर का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना चाहता है कि मेरी माँ को याद है कि इन लोगों का नाम क्या है, यहाँ कितने लोग खड़े हैं. जैसे जब बूढ़े हो जाते हैं तो कॉन्शियसनेस लेवल बहुत लो हो जाता है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता. तो ये बेटा यहीं पे वो अपनी मदर का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना चाहता है. सो दैट इज़ वाई ही इज़ आस्किंग द मदर ऑल दीज क्वेश्चंस कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी फिगर्स आर हियर, यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, क्या तुम्हें इनका नाम पता है, तुम इनका नाम बता सकते हो. तो वो द सन इज़ जेन्युइनली कंसर्न फॉर द मदर एंड ही वॉन्ट्स टू सी कि कहीं मेरी माँ को मतलब कुछ याद भी है कि वो किस लेवल तक उनका जो मेमोरी है वो किस लेवल तक वो डाउन होता जा रहा है. Like a dot in a question mark, I am sipping down memory lane and you give me a brain teaser. So तो यहाँ पे brain teaser क्या होता है? This is a question. So the mother is telling that I am sick and old and going to die, and you are asking me questions.
एंड यू वांट मी टू आंसर देम। तो ये मदर ये बोल रही हैं कि अब मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ एंड मेरी मेमोरी कितनी वीक हो गई है, और तुम यहाँ पे मुझे पजल सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो कि इसका नाम क्या है, कितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स। सो द मदर, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. You better ask this dream sucking pillow, this tear smelling heart. So the mother is suggesting to her son that instead of asking me all these things, you ask all these things to my pillow. So how my life was and how happy I was or not. तो पिलो को क्यों? क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स जब हम दिन भर अपना काम ख़त्म करके आते हैं, वी स्लीप इन द बेड, और रात को सारी मेमोरीज हमें याद होती हैं। तो वैसे ही जो ये मदर हैं वो बोल रही हैं रात को इंसान बेड में कुछ अच्छी चीज़ें याद करके वो हंसता है, और जो उनके साथ सैड चीज़ें होती हैं वो याद करके वो पिलो के साथ वो रोता है। तो जो जब रोते हैं तो वो आंसू पिलो में गिरते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि योर पिलो इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो अब मदर यहाँ पे कह रही है अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे पिलो से पूछो कि मैंने लाइफ में कितने हैप्पी टाइम जिया है और कितना सैड टाइम जिया है। मे बी द पिलो विल टेल यू एवरीथिंग. You give me a big dessert on a platter. I am losing my eyesight, memory life. Do you know how real hell it is if ears are alive? So in this portion, the mother is telling that my life has turned hell. मेरी जो लाइफ है अभी during this old age, it has turned hell. उनके लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं बचा है अभी. Nothing is left. You know, the worst part, what is that? The mother is telling that you cannot move your body, you cannot move anything, you cannot go anywhere. तुम कहीं नहीं जा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. The worst part is your ears are alive and you can hear everything. तो जब वो बूढ़ी हो गई हैं, वो काम नहीं कर सकती और उनके ईयर से वो सब कुछ सुन सकती है. तो वो वही कह रही है मैं फिज़िकली यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बॉडी पार्ट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. द वर्स्ट थिंग इज़ आई कैन हियर एवरीथिंग. वो सब कुछ सुन सकती है. जो अच्छी चीज़ें लोग बोल रहे हैं उसको भी वो सुन सकती है. जो बुरी चीज़ें लोग उनके लिए बोल रहे हैं कि शी इज़ अ बर्डन नाउ, शी इज़ नॉट एबल टू मूव नाउ, तो ये सब चीज़ें उनके कानों से उनको सुनाई दे रहा है और शायद हो सकता है उनको कुछ चीज़ें बुरी भी लगी हों. तो इसीलिए वो कह रही है द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट माई ईयर्स आर परफेक्ट एंड आई कैन हियर एवरीथिंग. So now I feel my life even if erased like the cotton that touches the navel blood of an infant. Under the weight of my years will break down. So this is the end of the poem. और इस पोएम में लास्ट में द ओल्ड लेडी एलिंग मदर, शी इज़ कंपेयरिंग हर लाइफ टू सॉफ्ट कॉटन. सॉफ्ट कॉटन कैसे? दैट इज़ फ्रेजाइल एंड डेलिकेट. लाइक जो सॉफ्ट कॉटन होता है उसे कैसे एक न्यू बॉर्न जब बॉर्न होता है तो न्यू बॉर्न के नेवल पे उसे रखा जाता है. व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड दैट इज़ कट that joins the mother and the newborn baby, जब उसे कट कर दिया जाता है और वहाँ पे वो कॉटन को लगाया जाता है. So and she knows very well that it will break soon and everything is separated. तो वो ओल्ड लेडी अपने इमेजिनेशन में अपने आप को वो कॉटन बॉल जैसी फील कर रही है और वो कह रही है कि माई लाइफ इज़ ओवर नाउ. उनकी जो जितनी लाइफ स्पैन थी वो उन्होंने जी ली. अब वो किसी भी वक्त उनकी डेथ हो जाएगी एंड शी विल डाई. And at the end she dies. और this is the end of the poem. और इस पोएम का जो मेन जो कंसर्न है, मेन जो थीम है, दैट इज़ द ओल्ड मदर्स. उनकी जो ओल्ड मदर है उनका फीलिंग्स है. द एलिंग मदर, हर कंसर्न कि वो उनके लाइफ में व्हेन शी वॉज यंग उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको जिया, सब कुछ इन्जॉय किया, बट एट द एंड when she is very old now, she is not able to move her body parts or only her ears are working now, and at this stage she doesn't want to live anymore. उन्हें और ज़िंदा नहीं रहना है. she is very tired now and very peacefully she wants to die and then she dies. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो. If you have any doubts you can write on the comment section and please do subscribe my channel. Thank you.